Am I audible? Yes, sir. This is the last topic of this particular unit. So we are going to finish our third unit, isn't it? So now what we are going to discuss? We are going to discuss the different parts of an engine. ठीक है, इंजन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, that we are going to see. Okay, in a broader way, we all had discussed about these particular parts. ये हमने पहले डिस्कस किए हैं ना शायद इंजन वर्किंग के टाइम पे. Yes, Yes or sir. no? Yes, sir. Yes, sir. So we are quite familiar with these particular parts. So इसको भी थोड़ा move करते हैं. This is also we had discussed. Now, then the different terms are there which are associated with the engine components. Okay, so those terms we are going to discuss. So very first term is nothing but the bore. Okay, so basically bore ये क्या होता है? Bore is nothing but this particular thing. This is the internal diameter. Okay, bore or a cylinder bore is the diameter of an each cylinder, and that is nothing but the internal diameter of an cylinder. Okay, then there is an stroke length. Just a minute. Then there is an stroke length. So it is the distance traveled by the piston in each cycle. So from top dead center to bottom dead center, whatever distance is being traveled by the piston, that is nothing but the stroke length. The stroke length is along with the bore diameter, and which determines the engine's displacement. That is what is nothing but the CC. Okay? Yes, this is what we are talking about. Then torque. In simple terms, it is nothing but the twisting or the turning force. It is the tendency of an force to rotate an object about an axis. In an automotive terms, it is the measure of rotational effort applied on engine crankshaft by the piston. Means what? Ultimately what we want this particular crankshaft to be rotated, isn't it? So that rotational motion is given by this reciprocating motion of the piston, isn't it? And that is nothing but the torque. Whenever we are defining the torque, we are defining this, how this particular piston is capable of rotating this, or how much torque it is going to give us, isn't it? And because of which we are going to get the power. So power, it is defined as the rate of doing work, isn't it? So then again, different terminologies we had discussed. Spark plug, fuel injector, we had discussed. Valve, we had discussed. Clearance volume, we had discussed. I think each and everything we had already discussed about it. Okay, so these are the basic terms which are associated with the engine components. Now इंजन, जब हम लोग देखते हैं इंजन, तो उसके सामने सिर्फ हमें एक इंजन नजर आता है, बट inside the engine there are plenty of the parts are there, isn't it? Now this is what is the exploded view. Okay, so exploded view मतलब क्या? एक इंजन को अगर हम लोग खोल देंगे या फिर ओपन करेंगे, ठीक है, उसकी अगर हम लोग डिसेंबली करते हैं, ओके, एक असेंबली होता है और एक डिसेंबली होता है. So this is what is the disassembly of an engine. So if we are going to observe the disassembly of an engine, then it is called as an exploded view. Okay, so this is what is the exploded view of an engine. तो ये इंजन में इतने सारे पार्ट्स होते हैं या फिर इससे भी ज्यादा पार्ट्स होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है. ठीक है, वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द ईच पार्ट. So very first and very important part, that is nothing but the engine block. अब ये engine block, see this is what is the engine block of an V engine. Okay, यहाँ पर ये 4 इंजन है और उसी के वो वाले साइड पे यहाँ पर और 4 इंजन है. So over here we are having 8 engines. ठीक है, here we have 4 engines. Sorry, I am talking engines, cylinders. So over here we have 4 cylinders, isn't it? So this is what is the block.
it is manufactured with the help of casting process. ठीक है, मोमबत्ती कैसे बनाते पता है आपको? देन ऑल दी व्हाट वी कैन से स्टैच्यूज ऑफ एन आइडल्स, मूर्तियां जैसे बनती है वैसे, दैट इज व्हाट इज द कास्टिंग इज. सो इट इज मैन्युफैक्चर्ड विद द कास्टिंग. Okay, then second part is nothing but the piston. So these are the pistons. These are manufactured firstly by the casting. Secondly, if very heavy loads are going to be there, then it can be forged, then it can be machined. ये जो surface है उसका एक surface finish हमें चाहिए होता है. Okay, so to achieve that particular surface finish, plenty of what we can say manufacturing thing are being done on the surface of the piston. So that is what is the piston. Next is the connecting rod. Next is the connecting rod. So this is what is the connecting rod. Again, it is manufactured with the help of casting or forging. Basically, forging is well-known method by which we can produce or we can manufacture any sort of product who can give or who can withstand to the any of the load. अगर बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है और उसको सस्टेन करना है, then forging is what is the best manufacturing technique what we can have. Then next is the crankshaft. So this is what is the crankshaft. ठीक है, आपको साइड व्यू में सिर्फ ये सर्कल नजर आता है हमेशा. ठीक है, but this is what is the whole crankshaft. Okay, if there are 4 cylinders, then it will be like this. If there are 1 cylinder, only one part will be there. ठीक है, so that is what is the crankshaft. In actual working, both ये दोनों कैसे दिखते हैं? So in actual thing, it is like this. Okay, और भी हम लोग एक वीडियो देखेंगे जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये असेंबल कैसा होता है और उसका एग्जैक्ट वर्किंग कैसे है. ठीक है, देन इंजन हेड. इंजन का जो सर है वो सर, बट इन दैट ये सिर्फ बेसिक इंजन हेड है. ओके, बट उस इंजन हेड में ये बनने के लिए उसके अंदर इतने सारे जो पार्ट्स है वो उसके अंदर असेंबल्ड होते हैं, और वो असेंबल्ड होने के बाद हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब वी कैन हैव दिस, isn't it? So in that we can have cam follower thing, we have spark plug, we have rocker arm, we have different gears. Are you getting me? So ये सब कुछ assemble करने के बाद ये normal engine head will be converted like this. So this is what is nothing but the engine head, and this is what is the engine head cover. ऊपर से उसको cover. Okay. Then next is different valves. Okay, ये valve कौन से हैं? Inlet valve, exhaust valve, these are that particular valves. Then these are the crankshaft casing or oil sump. किसी ने तो भी एक बार सवाल पूछा था कि लुब्रिकेशन हम लोग कैसे करते हैं. ठीक है, तो वो लुब्रिकेशन करने के लिए हम लोग इंजन में ऑयल फिल करते हैं. आपने अगर देखा होगा कि 2 व्हीलर में नॉर्मली हम लोग आफ्टर 6 months और आफ्टर 2 to 3,000 kilometers रनिंग वी डू रीचेंज द ऑयल, इजंट इट? तो एक ऑयल संप होता है नीचे या फिर ऑयल रिजर्वायर होता है, उसके अंदर हम लोग ऑयल डालते हैं, एंड देन दैट ऑयल इज बीइंग यूज्ड फॉर द लुब्रिकेशन पर्पस. सो दैट इज नथिंग बट द ऑयल संप और द ऑयल रिजर्वायर. ओके, देन दिस इज व्हाट इज द कैमशाफ्ट. जो ऊपर वॉल्व्स को, ये जो वॉल्व्स है, ये वॉल्व्स को ओपन या फिर क्लोज कौन करता है? तो ये कैमशाफ्ट करता है. ठीक है, दैट इज नथिंग बट द कैमशाफ्ट. देन नेक्स्ट इज नथिंग बट द सबसे इंपॉर्टेंट, कैमशाफ्ट को रोटेट करने के लिए जो भी चीजें है वो चीज है. सो दिस इज व्हाट इज द अरेंजमेंट. ये जो कैमशाफ्ट है ये इस वॉल्व को कैसे ओपन करेगा? जब ये वाला एक्सटेंडेड पोर्शन इसके कांटेक्ट में आएगा तब ये ओपन होगा, और जब नॉर्मल पोर्शन है कांटेक्ट में तब ये क्लोज्ड रहेगा. सो फॉर दैट वी हैव दिस काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट. ये 3 टाइप के अरेंजमेंट है. एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट है, इन सेकंड वी हैव रॉकर आर्म, एंड इन थर्ड वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग.
isn't it? So ये अलग अलग अरेंजमेंट्स है. देन नेक्स्ट इज द टाइमिंग बेल्ट. नॉर्मली आपने बेल्ट देखा होगा, तो उसी बेल्ट के अंदर अगर ये ऐसे टूथ पोर्शन है, उस बेल्ट को अगर टिथ है, देन इट इज कॉल्ड एज एन टाइमिंग बेल्ट. सो दिस काइंड ऑफ एन बेल्ट वी आर यूजिंग. ओके, तो ये हम लोग किसको कनेक्ट कर रहे हैं? कैन यू सी दिस? वी आर कनेक्टिंग कैम शाफ्ट विद द क्रैंक शाफ्ट. ये जो कैम शाफ्ट है, उस कैम शाफ्ट को कनेक्ट हम लोग कर रहे हैं क्रैंक शाफ्ट से. ओके, एंड फॉर दैट थिंग वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टाइमिंग बेल्ट. Then next is the spark plug. Just a minute. Next very important thing is spark plug. ये spark plug भी, और उसके अंदर ये जो गैप है, ये वर्टिकल गैप, ये गैप भी मेंटेन होनी चाहिए होती है. अगर आपने देखा होगा स्पार्क प्लग खराब हो गया, ऐसा आपने कभी सुना है, देन व्हाट वी डू पॉलिश दिस पर्टिकुलर सरफेस. क्योंकि स्पार्क अगर उसके ऊपर अगर कुछ कोई भी मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, देन उसके ऊपर फिर वो स्पार्क जनरेट करने के लिए तकलीफ देता है. देन वी डू पॉलिश दिस पर्टिकुलर सरफेस, इजंट इट? देन देर आर गैस्केट्स. कुछ भी अगर लीकेज वगैरह नहीं होने देना है, then we are using this gaskets. Then there are piston rings. So जो piston rings है, वो हम लोग piston के ऊपर लगाते हैं, so that whatever we are working above the piston, that will not come below the piston side. Okay, so these are the different parts of the engine. I hope you have understood what are the different parts, how do they look, isn't it? समझ में आया कुछ? सर वो गैस्केट क्या है? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखेंगे हम लोग गैस्केट क्या है, कहाँ पर फिट होता है, और उसका एग्जैक्ट यूज क्या है. ठीक है, अभी मैं एक वीडियो आपसे शेयर करता हूँ. ओके, आई होप यू कैन सी द वीडियो एंड यू कैन लिसन द ऑडियो टू. Yes, sir. जस्ट आइडेंटिफाई करो कौन सा पार्ट है मन में. Crankshaft, bearing, connecting rod, piston, pigeon pin, rod. It is fitted in the cylinder. और उसके बाद में ये गैस्केट आया, एंड देन देयर इज एन व्हाट वी कैन से स्क्रूज. तो ये बेसिकली गैस्केट किस लिए होता है कि जब हम लोग दो पार्ट असेंबल कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में से सराउंडिंग में कुछ लीकेज ना हो. एक तो फ्यूल लीकेज ना हो या फिर ऑयल लीकेज ना हो, उसके लिए. सो दैट इज व्हाट इज द गैस्केट. फर्स्ट फंक्शन ऑफ द गैस्केट और यूज ऑफ द गैस्केट. सेकेंड, बहुत सारे शॉक्स वहां पर जनरेट होने वाले हैं, बहुत सारे वाइब्रेशंस उसके अंदर जनरेट होने वाले हैं, तो वो वाइब्रेशन कौन एब्सॉर्ब करेगा? सो गैस्केट एक ऐसा मटेरियल होता है, बेसिकली इट इज ऑफ द एस्बेस्टॉस, तो वो शॉक्स भी या फिर वाइब्रेशंस भी एब्सॉर्ब कर सकता है. ठीक है, इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. ये फिर से मैं थोड़ा रिवाइंड करता हूँ. आप बताओ भाई मुझे ये क्या है? बताओ कौन सा पार्ट है ये? Timing belt. सॉरी, ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं, ये इसके बारे में डिस्कस किया नहीं, बट स्टिल यू कैन इमेजिन. Timing link. नहीं. ओके, लीव इट. यू कैन, दिस इज होमवर्क. नेक्स्ट लेक्चर में बताओ मुझे कि ये पार्ट कौन सा है. ठीक है. केसिंग के लिए कवर. ओके, सिलेंडर हेड कवर, गैस्केट, ये बॉटम सिंक, ऑयल सम,
manifolds. Now see, what do you understand by these manifolds? तो इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये मैनिफोल्ड हो सकता है. मैनिफोल्ड मतलब क्या कि रुको मैं एक मिनट आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. Okay. Yes, sir. See, say for example, this is what is the cylinders. We have 4 cylinders, isn't it? हर 4 सिलेंडर के लिए एक एक इनलेट है. Okay. So to connect all these inlet, we will be having one common inlet. So that is nothing but the inlet manifold. So this is what is the inlet manifold. और उसका एक main connection यहाँ से होगा. And then from here, that inlet manifold is going to distribute the whatever inlet is there, जो भी charge रहेगा. Similar grounds, on the similar grounds, we are going to have the exhaust manifold. तो जो भी एग्जॉस्ट से जो भी गैस हम लोग एटमॉस्फेयर में थ्रो कर रहे हैं उसके लिए एक सिंगल एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होगा और जिसके थ्रू हम लोग जो भी गैस है, बर्न गैसेस है, वो एटमॉस्फेयर में सेंड करेंगे. सो दैट इज व्हाट इज द मैनिफोल्ड. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ओके. व्हाट इज दिस? ये आपने कभी देखा होगा शायद, रिक्शा वाले हमेशा ये करते ही चीजें. वो एक पाइप डालते हैं यहाँ पे फ्यूल टैंक, ऑयल चेक करने का है. एग्जैक्टली ऑयल चेक करने के लिए. सो वॉट एवर ऑयल सम्प इज देयर, तो वो ऑयल सम्प में ऑयल लेवल कितना है वो चेक करने के लिए दिस इज व्हाट इज दैट पर्टिकुलर ऑयल लेवल चेकर. दैट इज व्हाट वी कैन से. कनेक्शन. Then this is what is the motor. Why motor is there? Whenever we are starting it with an what we can say key. अब हम लोग टू व्हीलर में क्या करते हैं, हम लोग किक मारते हैं, ठीक है. सो व्हाट दैट पर्टिकुलर किक इज इन अवर टेक्निकल टर्म्स वी कॉल इट एज एन डीकॉम्प्रेशन लीवर. उस किक को हम लोग हमारे लैंग्वेज में डीकॉम्प्रेशन लीवर कहते हैं. ओके, बट वो किक मारने से क्या होता है, वी आर व्हाट वी कैन से वी आर रोटेटिंग द क्रैंकशाफ्ट, isn't it? And because of that particular crankshaft movement, एक भी अगर स्पार्क प्लग जनरेट हुआ then whole cycle can start immediately. okay, but अगर वही व्हीकल या फिर वही टू व्हीलर हम लोग बटन से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, तो वो बटन से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आर वी गोइंग टू किक द थिंग? नो. तो वो बटन से हम लोग एक मोटर होती है, वो मोटर का कनेक्शन फिर क्रैंकशाफ्ट को दिया होता है और फिर उससे वो मोटर की पावर से हम लोग क्रैंकशाफ्ट को घुमाते हैं. एंड देन दी पिस्टन स्टार्ट्स रेसिप्रोकेटिंग. और एक भी अगर स्पार्क प्लग जनरेट हो गया देन ऑल वर्क इज डन. सो इंजन वर्किंग स्टार्ट हो गया, ठीक है. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड मोटर ओवर देयर. यू आर अवेयर दैट वर्किंग कैसे होता है.
shall we stop? I hope you have understood all the different parts of the engine, isn't it? You have understood the working of it. You have understood the various specifications. Okay? So that's it for this particular lecture. If you have any doubt, you can stay in the meeting, or if no, you can leave the meeting. You can mark your attendance in the Google form. And one more thing, I have uploaded your today up till now your attendance. मैंने Google Classroom में आपका attendance वहाँ पर upload कर दिया है. You kindly go through it. If you have any doubt in it, you can ask me. उस attendance में अगर कुछ disputes है, कुछ पूछना है, so you can ask. Otherwise, you can leave the meeting. You can mark yourself present in the Google form, not in the chat box. Yes, any doubt? सर Yes. हम डीजल कार को हम सीएनजी किट क्यों इंस्टॉल नहीं कर सकते? सॉरी हम पेट्रोल कार को सीएनजी किट इंस्टॉल करते हैं, वैसे हम डीजल कार को सीएनजी किट क्यों इंस्टॉल नहीं करते? हाँ, गुड क्वेश्चन. बताइए, अभी आप ही बताइए सवाल का जवाब. आपके क्वेश्चन में ही आंसर है. ऐसा कौन सी चीज है जो डीजल में नहीं है और पेट्रोल में है? स्पार्क प्लग. दैट इज वाई. एंड आप देखो, नॉर्मली घर पे अगर आपके यहाँ पे हम लोग गैस है हमारे यहाँ पे, ठीक है, एलपीजी गैस है अपने पास, तो एलपीजी को बर्न करने के लिए हमें क्या लगता है? लाइटर, इजंट इट? वन स्पार्क भी नीडेड. तो वो स्पार्क की जरूरत है. तो वो स्पार्क प्लग डीजल इंजन में है नहीं, तो वहां पर अगर हम लोग एलपीजी किट बिठाएंगे, सीएनजी किट बिठाएंगे, तो कुछ काम होगा? बिल्कुल भी नहीं. दिस इज द रीजन व्हाई वी कांट फिट और वी कांट accommodate LPG or CNG in the diesel engines. Okay. I hope I have answered your question. यस सर. सर Yes, Rutvej. माझी अटेंडन्स लागली नाही सर. फॉर्म ओपन झाला नाही माझे. कधी? काल. काल झालं नाही? हा. का बरं झालं नाही काल? ओपनच होत नव्हतं. सगळ्यांचं झालं, तुझंच कसं काय नाही झालं? दुसऱ्याच्या मोबाईल वरून करू शकत होतास ना तू? मी तुम्हाला विचारून म्हटलं पण राहून गेलं. ऋत्विज माने ना? हा. एक मिनिट. हॅलो. येस. एनी डाऊट? ऋत्विज, तू हा मीटिंग मध्ये सांगतो तुला मी. तुझा रोल नंबर काय? C02. 02. नाही ना रे. का तू किती वाजता केलं होतंस? ऋत्वेज, किती वाजता तू अटेंडन्स देत होतास? Others, if you don't have any doubt, you can leave the meeting. Thank you. Sir. हाँ, हॅलो yes. सर. Yes. सर माझी प्रेझेंटची 70% लागली आहे. Okay. हॅलो. Yes. हा, Go तर on. मला असं वाटत नाही की पण SME चं लेक्चर मिस केले, कारण की पहिला आम्ही त्या दुसऱ्या सरांकडे होतो. अच्छा. तिकडे होतो ना, मग त्यामुळे आमचे नव्हते इथे. आमचे प्रेझेंटेशन. ओके. सी, पहिले 4 लेक्चर जे होते तुम्ही तिकडे होतात, तिकडे आलात, तर सर्वांना मी तुमचे जे काही लेक्चरचे अटेंडन्स होते त्याच्यामध्ये 4 ऍड केलेत ऑलरेडी. त्यामुळे डोंट वरी अबाउट दॅट पार्ट. ते ऑलरेडी ऍड केलेले आहेत, त्यामुळे त्याची काळजी करू नका. ओके प्रणव. येस तेजस. आवाज येत नाही नीट. 11 वाजता ट्राय केलं तुम्ही. 11 वाजता केलं होतं, व्हायला पाहिजे ना, कारण 11 वाजता भरपूर जणांनी केलेले आहेत ऑलरेडी अटेंडन्स. मग अशा वेळेस काय करायचं, ती लिंक आहे ना
फ्रेंडच्या मोबाईलवरती पाठवायची किंवा बहिणीच्या मोबाईलवर, भावाच्या मोबाईलवर, आईच्या मोबाईलवर, त्यांच्या मोबाईलवरून काहीतरी ट्राय करून बघायचं. ठीक आहे. ओके सर. ओके. अजून कोणाला काही डाऊट आहे? तर मला यस तेजस. तर तुम्ही सांगितलं की प्रत्येक इंजिन मध्ये आपल्याला गिअरबॉक्स असतो. तर ऑटोमॅटिक इंजिन मध्ये गिअरबॉक्स आहे, बट पॅडल शिफ्टरचं काय काम असतं त्याच्यात? काय 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 पॅडल शिफ्टर जे असतात आपल्याला ऑटोमॅटिक कार्स मध्ये बघतो आपण. ऑटोमॅटिक कार्स मध्ये? ओके. हा, तर त्याचं वर्किंग कसं असतं? मीन्स नाही, मला क्वेश्चनच नाही कळाला की ऑटोमॅटिक जी कार आहे त्याच्यामध्ये गिअरबॉक्स असतो की नसतो, हे विचारायचं तुला? नाही, तुम्ही काय बोलले की असतो, प्रत्येक कार मध्ये गिअरबॉक्स आहे असं तुम्ही सांगितलं. बरोबर इंजिन मध्ये. बरोबर. हो सर, मग तेव्हा पॅडल शिफ्टर काय वर्क करतात इंजिन मध्ये? पॅडल म्हणजे काय म्हणतोस तू? मीन्स ते स्टेअरिंग व्हीलच्या इथं असतात सर, प्लस मायनस मध्ये स्टेअरिंग व्हीलच्या बॅक. पॅडल मला समजत नाही, पॅडल काय म्हणतोयस तू? पॅडल शिफ्टर सर. पॅडल सेक्टर? शिफ्टर. नाही, मला काहीच कळत नाही तू काय बोलतोयस. ओके सर, मी तुम्हाला पर्सनली विचारतो. हा चालेल, तरी चालेल. किंवा कुणाला फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग हिज क्वेश्चन? नो सर. नो सर. बर, तुम्हाला फोन कर बेटा, आपण बोलूयात. ओके. ओके. एनी अदर क्वेरी? इफ नो, यू कॅन लीव द मीटिंग. सर येस. सर तुम्ही एमसीक्यू आणि न्यूमरिकल्स म्हणलं होतं शेअर केले, पण कुठे केले सर? एमसीक्यूज नाही मी शेअर केले, मी न्यूमरिकल्स शेअर केलेत आणि ते सुद्धा गुगल क्लासरूम मध्ये त्याचा पाथ दिलाय. तर गुगल क्लासरूम मध्ये नोट्स आणि पीपीटीज आणि अदर मटेरियल असं एक कॉलम आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही ते बघू शकता. सर येस. सर आपली टेस्ट उद्या आहे ना? हो हो चालेल. किती वाजता टाइम काय आहे सर? सरप्राईज, अजून सगळं सरप्राईज आहे, ते उद्या सरप्राईज ओपन होईल. सर चालेल. थँक्यू सर. वेलकम. थँक यू. नाउ आय एम एंडिंग द मीटिंग. थँक यू. बाय सर. बाय.